Hello students, welcome back to the next session for physics for class 9, and we were doing the chapter motion, and in the previous lecture we have discussed about the derivation of the three equations of motion by graphical method, and I hope you all have understood the topic very well, and I hope that you all have practiced that derivation of equations at home. And if you still have any queries related to the derivation of the equations graphically, you can please text me anytime. Okay, you can ask me the doubts anytime. Now today we will going to do some numerical problems related to the three equations of motion. The first one is v is equal to u plus at, second one is s is equal to ut plus half at square, and third one is, as you know, v square minus u square is equal to 2as. And yesterday in the previous lecture we have learned that the first equation of motion is also known as velocity time relation, second is known as position time relation, and the third is known as position velocity relation. Right, now we are going to use the same three equations of motion in the following numericals. The first numerical is, as you can see on your screen, is a car starts from rest and acquires a velocity of 54 km per hour. तो सॉल्यूशन में हम साथ के साथ लिखते रहेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है. बेटा एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, या दैट इज़ u इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 km पर आवर इन 2 मिनट्स. टाइम मिनट्स में है या आर में है, तो हम दोनों ही किस में करेंगे? सेकंड्स में करेंगे. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एंड v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, एंड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू सेकंड्स वी नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 18, and 18 3s are 54. We will get 15 meter per second as the final speed. In time is given as 2 minutes, so we have to convert 2 minutes into seconds, and 2 minutes is equal to 2 into 60 seconds, that is 120 seconds. Right, now again we will read that statement. Find the acceleration and the distance traveled by the car during this time. We have to find the acceleration a and the s, that is distance traveled by the car in 120 seconds. Assume the motion of car is uniform. We have to assume the motion of car is uniform. So what we have to find? We have to find the a and s. Right, so first part is for acceleration. As we know that using, क्योंकि हमें क्या क्या पता है? v पता है, u पता है, t पता है, a निकालना है. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, that is what v is equal to u plus at. तो क्या आएगा? v कितना है हमारे पास? 15 is equal to, what is the value of u? 0 plus a we have to find, and t is 120. Right, so this implies that a is equal to 15 upon 120, that is equal to 1 by 8 meter per second square. So this is the actual answer for the first part, that is the acceleration. And second part, we will have to find the distance traveled by the body, and as we know the u and we know t, now we came to know about a also. You can apply the second equation also or third equation also, anyone you like. Suppose we are applying the second equation of motion using second equation of motion. We have, that is s is equal to ut plus half at square. By putting the values of the terms given, s is equal to u 0 into 120 is t, and half a is 1 by 8 यहाँ से आया, and t is we have 120 seconds, तो 120 का स्क्वायर. ओके, तो दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करोगे
तो s इज इक्वल टू 120 इंटू 120 y, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 120 इंटू 120 हो जाएगा 8 to the 16. Okay, by solving this factor we will get what 900 meters. That is the distance traveled by the body in 120 seconds. So this is how you can perform the numerical problems related to the three equations of motion. This was the first. Now moving on to second one. The second one is as you can see on your screen, a bus starts from rest and moves with a uniform acceleration of 1 meter per second square for 5 minutes. So first we have to write the given values. अब एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u कितनी आएगी 0, कॉमा मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a कितना दिया हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है एंड for how many times 5 minutes. We have to convert 5 minutes into seconds. It will become 300 seconds, right? So time दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमें और a दिया हुआ है and we have to find the speed acquired by the acquired. कितनी स्पीड वो acquire करेगा बाद में, मतलब we have to find v and the distance traveled by the bus and s. Easy है ये भी. And for the first v, for v we have to find v. We will apply first equation of motion using v is equal to u plus at. We will get u is equal to 0 plus a is equal to 1, t is 300, so it will comes out to be 300 meter per second. Therefore the first part का आंसर आ गया 300 meter per second, right? And second है the distance traveled by the bus. We have to also find the distance. तो distance find करने के लिए we will use the second equation of motion as ut plus half at square and u is 0, t is 300 again, half a is again 1, t is 300 का square. So it will become 0 plus 1 by 2 into 300 into 300. तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका 45,000 किलोमीटर मीटर्स, और वी कैन से दैट 45 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसको हम किलोमीटर में लिख सकते हो या ये भी आंसर आ गया, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो एज यू विश. ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. यू कैन सी दिस फॉर अ वाइल. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सी दिस. हो जाएगा, आई थिंक इजी था. ठीक है, नेक्स्ट वन इज a car is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. एक कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है पहले से ही. तो हम सोल्यूशन में देखेंगे पहले जो गिवन है, जो पहले से ही ट्रैवल कर रही है मतलब उसकी u गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट. द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड रिटार्ड्स द कार यूनिफॉर्मली. रिटार्डेशन हुई, स्टॉप होगी, धीरे धीरे रुक गई वो, एंड द कार इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड्स. तो टाइम इज़ गिवन एज 5 सेकेंड्स. तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेकंड में है टाइम, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. 36 इंटू 5/18, 18 टू ज़ा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड यू आ गई उसकी. फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड वी हैव टू फाइंड द ए, क्योंकि वो रुक गई कार बाद में, तो इसका मतलब उसकी वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड है. और वी हैव टू फाइंड ए and the distance traveled by the car before it is stopped after applying brake. दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, पहले की तरह है पर इसमें कार रुकी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, उसने बोल दिया था. तो फर्स्ट हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we have v is equal to u plus at. Using the values of u, v and t, v is 0, u is 10 meter per second, not 36, plus a, t is 5. So this implies that a is equal to minus 10 upon 5
और a is equal to -2 meter per second square, its value is negative. It means negative shows here. The negative sign shows the retardation of the body. That body is retarded. The motion is retarded motion. And next, second one, we have to find the distance traveled by the body. So s is equal to ut plus half at square. U is 10, t is 5 plus half, and a is again -2. We will put the value of a as -2, not 2, -2, and t is again 5 square. 2 cancel, 10 5s are 50, minus प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5s are 25. कितना आंसर आया? 25 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करेगा वो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स. ओके राइट. So this is the answer of your question. Now moving on to next please. A car starts from rest. A car अब एक वो रेस्ट से स्टार्ट हुई. जस्ट वेट एक मिनट. हाँ जी, एक कार है बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो हम पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई बेटा तो u हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका a दिया हुआ है हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स. तो टाइम इज गिवन एज 8 सेकेंड्स. इफ़ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बोलता है कि उसके बाद अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 सेकेंड्स सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने बोला कि वो पहले 8 सेकंड के लिए इतने एक्सेलरेशन पे ट्रैवल कर रही है. अगर वो उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टोटल कितना पूछा उसने? 12 सेकंड. नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए अगर वो उसी वेलोसिटी पर मूव करेगी जो उसने 8 सेकंड में एक्वायर की है, तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी. तो पहले हम फाइंड करेंगे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 8 सेकंड्स कितनी थी. ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर लो, बाद में वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे. नाउ पहले हम डिस्टेंस 8 सेकंड का फाइंड करेंगे, फिर 4 सेकंड का फाइंड कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या टोटल प्लस कर देंगे और टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 8 सेकेंड्स इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया? S1 ले लिया उसको. एंड S1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू u कितना है हमारे पास? 0. t कितना है हमारे पास? 8. ठीक है, प्लस हाफ a कितना है हमारे पास? 5. t कितना है हमारे पास? 8 का स्क्वायर. तो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 8 8 द 64. ठीक है, एंड ये कट गया, इस पे आ गया 32 एंड 32 5 160 मीटर्स. तो वी गेट द S1 एज 160 मीटर्स. नाउ दिस वेलोसिटी अभी हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी अटेन्ड इन 8 सेकेंड्स. ये क्यों फाइंड करेंगे बताता हूँ, वैसे कुछ को समझ आ गया होगा. वेलोसिटी अटेन्ड इन 8 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 8 दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी क्यों निकाली? क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट 4 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा ना. तो वहाँ पे वो वेलोसिटी यूज़ होगी जो उसकी इनिशियल थी. 8 सेकेंड के बाद उसने बोला था कि 8 सेकेंड के बाद वो 4 सेकेंड के लिए उसी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है कंटिन्यूसली जो उसकी वेलोसिटी पिछले 8 सेकेंड में उसने एक्वायर की है. ठीक है, तो हम अगर बात करें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, वो S2 ले रहे हैं हम. S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो S2 के लिए u तो है 40 मीटर पर सेकेंड, 0 नहीं लेंगे हम S2 के लिए, क्योंकि S2 हमने लास्ट 4 सेकेंड का लेना है
और लास्ट 4 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड 40, और टाइम 4 सेकंड लेंगे हाफ। ए कितना है, उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 4 सेकंड्स। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए कितना होगा बेटा 0 होगा, एंड टाइम इज़ अगेन 4 स्क्वायर 0 इंटू ये प्लस आएगा, सॉरी ये सारा फैक्टर 0 हो गया। 44 कितना आ गया 160 मीटर्स, S2 भी इतना आ गया। सो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो आएगा S1 प्लस S2 दैट इज़ 160 प्लस 160 दैट इज़ 320 मीटर्स। ये वाला वेक्टर याद रखना क्योंकि ए 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो इसको एक बार देख लो आप, मैं यहीं रख रहा हूँ इसका सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चक्कर नहीं है, पता लग जाएगा। Understood? Now the next one is ग्राफ के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ग्राफ्स हमने वैसे कर लिए पहले, तो उसके ऊपर बेस्ड इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आएगा। तो वो कैसे करना है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ में जो है जस्ट वेट, देयर आर 2 कार्स गिवन। एक कार का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दूसरी कार का ग्राफ ये है। ऐसे करके यहाँ से वो ये होगी कार बी कार ए। velocity time graph for 2 cars is given as in shown in the figure, and they are starting from the same place along a same straight road and in the same direction। ठीक है, वैसे जा रही है। but calculate the acceleration between 0 and 8 seconds of car A। 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें पता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए बिटवीन 0 to 8 seconds is equal to slope of VT ग्राफ फॉर कार ए। एंड इसका स्लोप क्या आएगा, हमारा यहाँ 8 सेकंड कंप्लीट होता है ना, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ओ दे लो नाम, इसका नाम पी दे लो, इसका नाम क्या दे लो क्यू। तो ओ क्यू पी एक ट्राइंगल बन गई। इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू आ जाएगा। और पी क्यू अपॉन ओ क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 80। OQ is equal to this, that is equal to 8। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the acceleration of the car A only। ठीक है, and next we have to find it is that is part B, the acceleration of car B between 2 seconds and 4 seconds। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक कार B का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसके लिए कार B जो है उसका ये ग्राफ आ रहा है हमारे पास। इसको मान लो R, इसको मान लो S, ठीक है, इसको मान लो T, इसको मान लो U सपोज। ठीक है, U मत मान लो, चलो U मान लो कुछ करें। तो इसका स्लोप एरिया स्लोप फाइंड करेंगे। इसका स्लोप कैसे फाइंड होगा, हम R से लेके यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता तो हम क्या फाइंड करते, एरिया फाइंड करते। अभी हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो आर इसका स्लोप क्या आएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली, आर एस सपोज एम, आर एम एस, ये एक ट्राइंगल बन गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी बिटवीन 2 seconds and 4 seconds इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, एस एम अपॉन आर एम।
एस एम अपॉन आर एम, एंड एस एम इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये 20 है, ये कितना है 60, तो 60 माइनस 20 कितना आएगा 40, क्योंकि 20 नीचे वाला ना, सारे में से ये माइनस कर देंगे। तो आर एम किसके बराबर है हमारा, इसके बराबर है। ये 2 है, ये 4 है, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन है, कार बी का। मतलब कार बी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है कार ए से, ठीक है। अभी थर्ड है हमारे पास जो, दैट इज़ द पॉइंट्स ऑफ टाइम एट विच बोथ कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सी पार्ट का हमने वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे कार की वेलोसिटी सेम होगी। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में कि वेलोसिटी तब सेम होती है जब दोनों का ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। तो हम देखें तो कार ए और कार बी एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम कितना है 6 सेकेंड्स। तो इसका आंसर आएगा 2 सेकेंड एंड 6 seconds are the points on the time of points of time at which both cars have the same velocity, right? Now अभी हमारे पास D पार्ट है इसका, which of the two cars is ahead after 8 seconds and by how much? 8 सेकेंड के बाद कौन सी कार आगे होगी और बाय कितना होगी। अब ऐसा मत सोचना कि सर कार बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगी। हाँ, वो ज़्यादा आगे हो सकती है, पर नॉट कंपल्सरी, हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना हो, क्योंकि उसने पूछा भी है कि कितना डिस्टेंस आगे होगी, ठीक है। तो हम 8 मीटर में कार ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 8 मीटर यहाँ पे होता है, तो कार ए का जो डिस्टेंस आएगा वो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू पी। पर जो कार बी है उसका 8 यहाँ होता है, तो उसका एरिया ऑफ क्या आएगा, ट्रेपीजियम आएगा। दैट इज, इसको मान लो आप एन एस इसको मान लो कुछ भी यार डी, एन एस डी, और इसको मान लो हमने क्यू। तो एन एस डी क्यू ट्रेपीजियम है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। तो डी पार्ट मैं आपको एक अलग पेज पे करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये देखना। हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डिस्टेंस ट्रैवल डी पार्ट करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए इन 8 सेकेंड्स, तो उसको ले लो S1, ठीक है, या SA ले लो, ठीक है, इज SA। तो दैट इज इक्वल टू ऑलवेज एरिया ऑफ, एरिया अंडर ग्राफ होता है ना वो, क्योंकि एरिया ऑफ क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा OQP, क्योंकि ये ग्राफ A का है, ठीक है। तो OQP एरिया होता है हाफ ऑफ बेस, बेस है हमारे पास OQ, हाइट हमारे पास PQ, तो हाफ ऑफ OQ है हमारे पास 8, PQ है हमारे पास 80, ये कट गया 4, 8 4 जा 32। तो 320 मीटर का डिस्टेंस कवर किया किसने, कार ए ने 8 सेकेंड में। अभी मैं फाइंड करूँगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इन 8 सेकेंड इज इक्वल टू, ले लो SB, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है, ये है हमारे पास N, ये वाला, और यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ ये वाला एरिया नीचे आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NSDQ, ये होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे NQ प्लस SD इंटू हाइट, हाइट ये लेंगे हम DQ, ठीक है। तो हाफ ऑफ NQ, ये 1 है, ये 8 है, 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, प्लस SD, S कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 पे है, D हमारे पास 8 पे है, 8 माइनस 4 4, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है ये सारी, ये 60, कितनी है ये 60, दैट इज 60, ओके, क्लियर। तो ऐसे लिखेंगे ऑब्वियसली। तो हमारे पास आएगा हाफ, ये काटते हैं अगर तो ये भी हो जाएगा 30, तो इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 30, ये आएगा 330 मीटर्स, राइट। तो हम बोलेंगे
the distance traveled by the car A is less than the distance traveled by the car B in 8 seconds and by how much. 10 कार कितने, ये 330 है, ये 320 है, तो कार B is ahead of car A and by how much 10 मीटर्स, 10 मीटर ही आगे आएगी 8 सेकंड के बाद। क्लियर, समझे? तो ये आपका क्वेश्चन था सारा, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये इनकी प्रैक्टिस कर लेना मैक्सिमम से मैक्सिमम। आज आपको PDF फाइल भेजूंगा, उसमें अनसॉल्व न्यूमेरिकल होंगे 5 और 6, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और इन सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। एंड इसके बाद वर्कशीट दूंगा, फिर वो करेंगे ऑनलाइन जूम ऐप पे। तो दैट्स वाई, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, बाय बाय, टेक केयर।